This is from a book called Kanzul Amal, یہ کنز العمال کی کتاب میں سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے. the treasure of the workers, جو کام کرنے والے ان کا خزانہ. in the chapter of the issues of women. جو عورتوں کے امور ہیں ان سے متعلقہ ہے یہ. Authored by Ali ibn Hussam al-Din, اور لکھنے والے کا نام آپ نے سن لیا ہے, commonly known as al-Muttaqi al-Hindi. المتقی الہندی. He based his book on the hadith and sayings listed in Al-Jami al-Sagir, written by Jalaluddin al-Suyuti, واہ, narrated by Ibn Abbas. دھیان سے سنیں اب اس کو. I, Muhammad, put on her my shirt. میں محمد نے اپنی شرٹ, اپنی قمیض اس کے اوپر پھینکی یا اس کے اوپر لپیٹ دی, that she may wear the clothes of heaven. تاکہ وہ آسمانی لباس پہن لے. ہے شرٹ محمد کی, کتنی گندی تھی کتنی اچھی تھی وہ بات کی بات ہے, اس کو اس نے آسمانی کپڑوں کے ساتھ ملا دیا ہے. واہ بھائی واہ. And I slept with her in her coffin grave, اور میں اس کے ساتھ قبر میں سو گیا. کس کے ساتھ؟ خیال رہے. that I may lessen the pressure of the grave. تاکہ میں جو قبر کا عذاب اس کو میں کم کر دوں. She was the best of Allah's creature to me after Abu Talib. کہتا ہے کہ ابو طالب کے بعد, ابو طالب محمد کا چاچا تھا اور یہ اس کی بیوی تھی جو ابو طالب کی تھی, یعنی محمد کی چچی, محمد کی انٹی, محمد کی پنجابی میں چاچی یا چچی یا انٹی. یہ محمد کے نزدیک سب پوری کائنات میں سب سے اچھی مخلوق ہے ابو طالب کے بعد. سیمی سیمسن چوڑے کا داماد ابراہیم قادری. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آپ نے سیمی سیمسن کی بکواس سن لی, کس قسم کا بہتان لگا رہا ہے, حدیث مبارکہ کا ریفرنس بھی دے رہا ہے. تو میری التجا ہے تمام بہنوں اور بیٹیوں سے کہ وہ میرا بیان یہ نہ دیکھیں, کیونکہ اس میں بائبل کے کچھ ایسے حقائق جن پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے, یا لوگ بہت جانتے ہیں اس بات کو, مگر میں نے آج تک بیان نہیں کیے. اینڈ پر میں وہ حقائق کو ظاہر کروں گا, اور اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بیان دیکھ رہی ہیں تو جب تک میں یعنی کہ جو اس نے گندگی غلاظت اچھالی ہے اس کا میں رد کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ نے بیان نہیں دیکھنا. کیونکہ آج میں کچھ ایسی چیزیں یسوع کی ماں کی کچھ ایسی چیزیں سامنے لاؤں گا جو نہایت ہی غیر مناسب اور غیر اخلاقی ہوں گی. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو اس نے حدیث مبارکہ کے ریفرنس دیے ہیں, تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. کنز الایمان 13واں حصہ, یعنی کہ کنز الایمان کی 13ویں جلد ہے, صفحہ ہے 291. حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو بیان ہے ان کے بارے میں, اس کو سب سے پہلے ہم ان کی دیکھتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے 37202. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کی. جب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص میں کفن دیا, ان کی نماز جنازہ پڑھائی, ان کے لیے استغفار کیا اور دعائے خیر کی, اور جب انہیں قبر میں رکھ دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے قبر میں لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنی قمیص میں انہیں کفن دیا ہے تاکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت میں داخل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ اللہ رب العزت ان کے لیے تخفیف فرمائے. اور اگلی ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں, 35607 ہے, اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص میں کفن دیا, ان پر نماز جنازہ پڑھائی
और 70 तकबीरें कहीं। फिर आप कब्र में उतरे और हाथ से यूं इशारे किए जैसे आप कब्र में तौसीह कर रहे हों। फिर कब्र से बाहर निकल आए, जबकि आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने मुट्ठी भर मिट्टी कब्र में डाली। जब आप चल पड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, ये औरत मेरी हकीकी मां के बाद मां का दर्जा रखती है। अबू तालिब का मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रहा है। इनका दस्तरखान बिछता था जिस पर हमें जमा किया जाता था। ये औरत अबू तालिब के यहां फजीलत वाली औरत थी। जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने रब ताला के तरफ से खबर दी है कि ये अहले जन्नत में से है। मुझे जब्राइल अमीन ने यह खबर भी दी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70,000 फरिश्तों को इस पर नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया है। और अगली हदीस मुबारक है 37,608। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जब फातिमा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उतार कर उन्हें पहनाई और फिर इनकी कब्र में लेट गए। जब कब्र पर मिट्टी डाल दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी कमीज उसे पहनाई ताकि वो जन्नत के कपड़े पहने, और मैं इसके साथ कब्र में लेटा हूं ताकि कब्र की भींच में तखफीफ हो। बिलाशुबा अबू तालिब के बाद इस औरत ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। अब ये इस हदीस मुबारका को लेकर और इसने पढ़ा भी है, तो इससे क्या ले रहा है वो आपके सामने है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह मुर्दा औरत से या मुर्दा आंटी से मुबाशरत की। तो मैंने हदीस मुबारका एक की बजाय 3 हदीस मुबारका जो कंजुल ईमान के एक ही पेज पर मुझे मिल गई, तो मैंने आपके सामने रख दी। कौन दानिश्वर या कौन जाहिल इसमें से ये जो इसने बकवास की है साबित करेगा। हमेशा याद रखो कि जब भी कोई चूड़ा, ईसाई, क्रिश्चियन, बास्टर्ड हैं, जब भी कोई दीन इस्लाम पर या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाएगा या कोई ऐसी गलाजत अब साबित करने की कोशिश करेगा, तो असल में उसकी बैक पर उसके पस मंजर में देखना पड़ेगा कि असल में इसके जहन में क्या चल रहा है। उसके असल में उसके जहन में बाइबल चल रही होगी। बाइबल की गलाजत को छुपाने के लिए, बाइबल की गलाजत को छुपाने के लिए चूड़े जो हैं या ईसाई हैं जो वो ऐसी हरकतें करते हैं। चाहते क्या है कि हमारी गलाजत छुपी रहे, लोग इस तरफ माइल रहें, लोगों का माइंड इसी तरफ बनाई रखो। सैमुअल 2 बाब 16। तब अबी सलूम ने अखी तुफल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। सो अखी तुफल ने अबी सलूम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कभी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबी सलोम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबी सलोम ने सब बनी इस्राएल के सामने अपनी बाप के हरमों के पास गया। क्या किया? अबी सलोम ने, यानी कि दाऊद का ये बेटा है, ये अपने बाप की हरमों के साथ बीवियों के पास सब इस्राएल के सामने तंबू खड़ा करके छत पर तंबू लगाया गया, सबके सामने गया। अब ये इतने बेगैरत इस्राएली थे कि उनके सामने शरीयत की धज्जियां उड़ती रहीं। एक बंदा अपनी माओं के साथ जिना करता रहा। बाइबल से अगर आप पढ़ें तो वो 10 औरतें थी जिनको दाऊद अपने घर की निगरानी के लिए छोड़ के गया, यानी कि अपनी बीवियों को, अपनी हरमों को, जिनके साथ दाऊद सोहबत करता रहा, उनको छोड़कर गया। और उसके बेटे ने, दाऊद ही के हकीकी बेटे ने, सब इस्राएल के सामने जाके जिना किया। अब इनके ज़हन में यही गंद होता है जो दीन इस्लाम पर बखेरने की या दीन इस्लाम पर गुजारने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं यस्सू को एक नए अंदाज में, यस्सू को और यस्सू की मां को। ये मैंने बहुत सारे बयानात में साबित तो कर दिया है कि यस्सू की मां यानी कि मरियम, ये जो इनके नजदीक सेंट मरियम है, होली मरियम है, फलां है, तो वो बहुत ही, ये इनकी नजर में जो है, बाइबल की नजर में
मुकद्दसा मरियम कंजरी है, बाइबली मुकद्दसा मरियम कंजरी है। क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम का 5 मर्दों के साथ कॉन्टैक्ट था और 3 ऐसे अशखास हैं जिनके लिए आज तक क्लियर नहीं हो सका कि वो यानी कि वो झगड़ा चल रहा है, जो नसब नामे में शामिल है। 3 अशखास, उनमें यूसुफ बिन एली, यूसुफ बिन याकूब और दाऊद बिन इब्राहिम के इन तीनों में से कौन ऐसा शख्स था जो यस्सु का बाप था? हकीकी बाप इनमें से कौन है? यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यस्सु। अब देखते हैं कि यस्सु की यानी कि आपको इसकी मां का तो पता चल गया कि उसके 5 औरतों के साथ, 5 मर्दों के साथ कॉन्टैक्ट थे। अब यस्सु की पैदाइश होगी। अब यस्सु को जब पैदाइश हुई तो मरियम का करैक्टर कैसा था कि वो अपनी ऐसी पिक्स, ऐसी तस्वीरें देती रही या ऐसी तस्वीरें उतरवाती रही या ऐसी तस्वीरें बनवाती रही, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं क्रॉस के ऊपर। मुकद्दसा मरियम कंजरी है, बाइबली मुकद्दसा मरियम कंजरी है। फिर आप देखें यूहन्ना बाब 1 और इसकी आयत 29 में, दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अब जो लोग बकरियों की फार्मिंग करते हैं या बकरियों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर फार्मिंग नहीं भी करते या फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं या इन बकरियों को गली मोहल्लों में लोगों ने पाले होते हैं, तो वो बकरों को देखते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं, माँ का दूध पीते पीते वो अपनी माँ के ऊपर, माँ के साथ कार्रवाई डाल देते हैं। फिर आप देखेंगे कि पूरी चारों अनाजीले जलीला में कहीं पर भी यस्सु ने अपनी माँ को यानी कि मरियम को कहीं भी माँ नहीं कहा। क्या नहीं कहा? माँ नहीं कहा कि आए माँ, कहीं भी आए माँ या मेरी माँ या ऐसी बातें नहीं की। अगर किसी ने कहा कि तेरी माँ बाहर आई है तो यही कहा कि मेरे माँ और ये सारे यही हैं जो मेरे सामने मेरी बातें सुन रहे हैं। यस्सु जो है वो अपनी माँ को ईमानदार ही नहीं समझता, ईमानदार ही नहीं समझता। अब हो सकता है कि मरियम ने यस्सु पर ऐसा कोई हमला किया हो नहीं सकता, यकीनन है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप जो मेरे ये क्रॉस के ऊपर तस्वीर देख रहे हैं कि मरियम ने यस्सु के साथ ऐसी कार्रवाई डाली हो, यस्सु के साथ ऐसी कार्रवाई डाली हो जिससे जाहिर है यस्सु भी जवान था। यीशु मसीह ने अपनी माँ से मुबाशरत की है, सेक्स की है। यीशु मसीह के जहन में हर वक्त गंदे कीड़े घूमते रहते हैं, इसलिए कि वो खुद गंदा कीड़ा है। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। एक शख्स वो होली है, वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है, खुदा है। उसके जो 4 गवाह हैं यानी कि चारों अनाजील, वो कहीं पे नहीं बताती कि वो अपनी माँ का इतना फरमबरदार था या उसने अपनी माँ को माँ कहा। शायद वो इतना गैरतमंद हो कि मैं जिस औरत के साथ जिना कर चुका हूं, मुबाशरत कर चुका हूं, सोहबत कर चुका हूं, उसको मैं अपनी माँ कैसे कहूं। इसलिए ये चीजें यस्सु पर और उसकी माँ पर साबित होती हैं। तस्वीर ऐसे नहीं बनी हुई, किसी मुसलमान ने नहीं बनाई। ये तस्वीर जो है हकीकत की अक्कासी करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम
दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोज़गार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर इमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व इमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।